Hello everyone. Good morning. Hi, good morning. Yes. Yes. Okay, thank you. Okay, so in the last session, I think we have started with the performance testing process, right? We are understanding what is JMeter and how you can set up request in JMeter. So let me quickly show you again. So in the last session, I asked you on your local machine, you can install JMeter. And then when you open this folder, you will get a Windows batch file. Okay. My version is older version, so I'm getting in that way. Maybe in your case, you'll be getting in different way. And then you just need to double click on that and it will start your JMeter. So JMeter needs only Java, right? If your machine simply the Java is installed on your machine, you can start working with JMeter. Okay. Anyways, at fresher level, we don't use JMeter tool, but still at least basics you should know what JMeter it is, how the performance testing we generally carried out. Okay. So first of all, this is the tool. And in the last session, we have also discussed about like how we can set up a request and how exactly JMeter, you know, reply you or respond you, right? With respect to certain parameter. So let me show you the project. In the last session, I have saved it. So let me do open it. It's on the desktop and let me just quickly search that JMeter result and I have written this automation march. Okay. So in the last session, we have seen under thread group, we have just created a Google request, right? And this is how you guys are able to continue with the process. But only one request. I have shared only one request and then we have observed the result in the tree and the table view. See one more time, if I execute this, it will pass a request. And in the table or tree view, you guys are able to see the response. So currently number of samples means number of user, right? We have different component to study in JMeter. And whenever you are passing your request, you can see, you can observe the entire flow here, how the request is going to the server. So this is the first request, second request, third, fourth, and fifth. Whatever time it has taken, you'll be able to see here. Okay. And even this is also a starting time. You can see every request almost at the same time. Concurrently, we are passing. Actually, this is called what? Your entire, we can say this is what? Your entire load. So we are passing concurrently request or concurrently, threads on that server and we are testing it, how it is working. So here you can see that there is no time gap available. If you observe, it is very, very fast. And at the same time, we are passing certain requests to the server. Then what will be the connection time? What will be the latency time, send bytes, everything you guys are able to capture here. So in JMeter, generally, this is the responsibility of a tester. Pass a request and these parameters they need to validate. Okay, how they validate the parameter, for that we have assertion for study. So in the last session, we have discussed only this much, like what JMeter it is, what is the ramp up period, right? So generally we don't need any ramp up period to set up. By default, it is one. We can take it that. So by default, all the threads, when they will start, it will take at least 1 second to load onto the server, and then it will start your request. So now today I will be covering what is timer, what is assertion, how we can set up functions and variable in the JMeter, and then how we can do the recording. Okay, if you really want to check that how JMeter, through the JMeter we can do record and playback, so that is also possible. And last topic will be execution order. This is just an interview question, like in which order JMeter execute a script. So there are multiple components. So you just need to remember this sequence. Okay. So let's see the practical part first, like what is the timer and how we can set up. So if you remember, JMeter is quite different, right? It's not your, like we are not doing any UI testing or any functional testing using JMeter. So what is process happening here? From the client, we are passing request to the server. Okay. But there is a possibility. Tomorrow, if there are two clients, they are passing request to the server. In between this client, if I want any delay to be passed, ठीक है? मतलब दो रिक्वेस्ट में अगर आपको एक डिले पास करना है तो हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू दैट? फॉर दैट डिले वी यूज अ टाइमर. ठीक है?
आइदर आप कांस्टेंट डिले पास करो दो रिक्वेस्ट में, आइदर आप पास कर सकते हो कुछ यूनिफॉर्म रैंडम डिले। तो यूनिफॉर्म रैंडम डिले, इट इज अगेन बेस्ड ऑन योर कांस्टेंट डिले ऑफसेट. It is a formula you can see, random delay maximum plus constant delay offset. Based on that, we can simple apply some delay. तो अब ये delay कैसे पास करोगे, right? For that, we need to understand. We need two requests. Here, one request I'm passing with 5 user. Are you understanding? One request I'm passing with 5 user. अब मुझे क्या करना है? I want to pass two different requests. So what I'm going to do, I will keep this thread group separately. I'll create a one more thread group. Under the same plan, you have to go to thread group. Suppose a thread group number 2 hai. I will be updating that thread group number 2, where I'm going to show you the timer concept. Let me take only one user for now. Then under this thread group, I will be designing one sampler, that is our request, HTTP request. अब हम एक ऐसा एप्लीकेशन लेंगे जहां पे हम लोग दो रिक्वेस्ट को पास कर पाएंगे, ठीक है? तो आई विल बी टेकिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ JMeter. जस्ट ऑब्जर्व JMeter. When you go to this Apache, so this is the main page. I will be taking first home page. So let me copy and let me pass here that entire request. ठीक है? अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो. कैसे करना है? This is a protocol, right? So we will keep this protocol here in the HTTP, and the remaining part you can remove. Okay? This is the last arrow indicate it is a path parameter. So you need to write it here. So this is how you will do what? You will do the setup. Okay, just a minute. Let me little bit increase the font. Okay. तो मैंने बस क्या किया है, यहाँ पे अपना डोमेन नेम सेट किया, सर्वर नेम सेट किया. दिस इज माय प्रोटोकॉल एंड यस आई एम पासिंग एनीवेज गेट रिक्वेस्ट. So this is the first request. I will be writing, suppose this is a home page request. You can change the name too. बाकी सेटअप मुझे करना नहीं है इसमें. I will be creating one more sampler. See, sampler, again HTTP request. And here, let me again go to this and let me open user manual. Okay, तो देखो ये user manual का पेज है, मैंने इसको ओपन किया. Let me copy entire URL. अब इसको सेट कैसे करोगे? तो here you can pass. But ये जो पूरा path parameter है, that we can cut from here from the domain and we can pass it here. ठीक है, ये है आपका path parameter. And main जो आपका प्रोटोकॉल है, that also you can cut and you can maintain it here. ठीक है, HTTPS, remaining part remain as it is. तो main server domain, this is the main server domain, protocol HTTPS and this is your path parameter. तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया. ठीक है, ये हुआ मेरा सेकेंड रिक्वेस्ट. आई विल बी राइटिंग दिस इज अ यूजर मैनुअल रिक्वेस्ट. ठीक है, तो अब मेरे पास दो रिक्वेस्ट अवेलेबल है. वन इज अ होम पेज, सेकेंड इज अ यूजर मैनुअल. आई नीड टू चेक रिजल्ट ऑल्सो. तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिसनर्स को ऐड करेंगे. व्हेन यू गो टू लिसनर्स, लेट्स ऐड रिजल्ट इन टेबल and then I will be taking tree listener also. So let me take result in tree. Okay, so now we have added two different listeners here. Listeners का मतलब क्या होता है? It is a kind of report. Okay, अब इस रिपोर्ट को मतलब कैसे हम लोग रिक्वेस्ट को पास करेंगे and what will be the result, let's observe. So initially I'm opening my table view and I'm just going to run this thread group 2. So let's click on run. You will be not able to see any UI, but you can see the output is coming. सेम टाइम पे रिक्वेस्ट दोनों भी पास हुआ. कैन यू सी दिस टाइम? 9:30 9:30 सेकेंड्स में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, बट दिस इज व्हाट द परफेक्ट टाइम. तो आई हैव पास concurrently two different requests on my server and even I am getting the pass result. Okay, but now I want to show you timer. The first timer that I will be covering, which is called timer in JMeter, which is a constant. Okay, तो constant का मतलब क्या है? देखो, it pause the execution of the test for specified constant amount of time. मतलब जो भी टाइम आप दोगे उस टाइम के लिए वो एग्जीक्यूशन क्या करेगा? पॉज करेगा. तो एग्जाम्पल हाउ टू अप्लाई टाइमर, यू हैव टू राइट क्लिक ऑन थ्रेड ग्रुप. एड में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन मिलेगा एंड देयर आर मेनी टाइमर्स अवेलेबल, but we'll be covering only two because again at a fresher level we don't need this, right? But basics points I will be covering. So constant timer if I apply, you will get this way.
अब इस कांस्टेंट टाइमर में कुछ नाम अगर आपको चेंज करना है यू कैन डू दैट, बट आई विल बी कीपिंग इट सेम. ओनली द पॉइंट इज आई विल बी पासिंग डिले हियर. सपोज मुझे यहाँ पे कांस्टेंट टाइमर इन दो रिक्वेस्ट में अगर मुझे 5 सेकेंड का डिले पास करना है, तो 5 सेकेंड का मतलब होता है, सी 1 सेकेंड मीन्स 1000 मिली सेकेंड. तो वॉट एवर डिले यू आर पासिंग, राइट, you need to pass it in millisecond. So suppose currently I'm writing here 5000, which is nothing but 5 second. तो 5000 का मैंने टाइमर यहाँ पे अप्लाई किया, दैट्स इट. तो टाइमर आपका रेडी है. करंटली आप आंसर देख सकते हो कि 9:13:52 पे आपका रिक्वेस्ट पास हुआ था, दोनों रिक्वेस्ट इनफैक्ट ऑन टू द सर्वर. बट इस टाइमर को यहाँ पे अप्लाई करोगे तो इट विल नॉट वर्क. ओके, यू नीड टू अप्लाई इन बिटवीन द रिक्वेस्ट. तो जैसे आप टाइमर अप्लाई करोगे थ्रेड ग्रुप में, आप इसको ड्रैग करो and you can keep it in between home page and user manual. So what is meaning of this? After home page, after 5 seconds, we are expecting what? Second request should be goes to that server. This is what delay, right? What we are expecting कि एक request send होने के बाद 5 second के gap के बाद second request server पे जाना चाहिए. Because currently it is a constant. You can see, currently it is a stable at a time we are passing request. बट अगर डिले देना है कांस्टेंट डिले, तो जो भी टाइम सेट करोगे इट विल सिंपली पॉज द प्रोसेस फॉर दैट मच ऑफ टाइम एंड लेट्स सी वेदर इट इज वर्किंग. तो नाउ आई एम नॉट रिमूविंग द प्रीवियस रिजल्ट, आई एम कीपिंग द सेम जस्ट फॉर अ डिफरेंस एंड आई विल जस्ट रन. सी thread group 2, okay, and see you are getting here home page run हुआ after 5 second. can you see the difference? ये होम पेज आपका रन हुआ था 9:16:45. अब देखो आफ्टर 9:16:50, तो कंप्लीट 5 सेकेंड के गैप के बाद सेकेंड रिक्वेस्ट पास हुआ है सर्वर के पास, एंड देन यू आर गेटिंग सम स्टैटिस्टिक्स अगेन फ्रॉम द सर्वर. तो ये पॉइंट क्लियर है व्हाट इज अ कांस्टेंट टाइमर. सी वन मोर टाइम, इफ आई रिमूव एवरीथिंग, प्रीवियस रिजल्ट था हमारा स्टेबल एट ए टाइम, बट जैसे हम अभी रन करेंगे थ्रेड ग्रुप नंबर 2, लेट मी ओपन टेबल एंड लेट मी रन इट. तो जो टाइम पे पहला रिक्वेस्ट पास होगा सर्वर के पास आफ्टर 5 सेकेंड, इट विल सिंपल पास अ सेकेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर. कैन यू सी दैट? आफ्टर 28 सेकेंड 33 पे सेकेंड रिक्वेस्ट सर्वर के पास हुआ. एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ कांस्टेंट टाइम. तो कांस्टेंट टाइमर मतलब एग्जैक्ट डिले आप पास कर सकते हो. अब मुझे सेकेंड टाइमर सपोज अप्लाई करना है, दैट इज अ यूनिफॉर्म रैंडम टाइमर. अब ये रैंडम है, इट डज नॉट मीन कि ये पूरा का सेम और जितना भी टाइम आप डिफाइन करोगे सेम टू सेम टाइम लेगा. नो, इट्स अ रैंडम टाइम. मीन्स इफ यू सेट अप एनी मैक्स डिले, तो बिटवीन दैट रेंज यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट. इट्स नॉट स्टेबल, ठीक है. बट अप्लाई कैसे करोगे? जस्ट हैव अ लुक. सबसे पहले तो कांस्टेंट को हमें डिसेबल करना होगा. तो राइट क्लिक ऑन दैट टाइमर एंड यू कैन डिसेबल इट. मतलब अभी ये अप्लीकेबल नहीं है. अगर आप फिर से अपने रिजल्ट को रन करोगे तो यू विल गेट अ करेक्ट एक्यूरेट रिजल्ट. सेम टाइम पे रिजल्ट मिलेगा, देखो, बिकॉज देर इज नो टाइमर राइट नाउ. 9:18:26, 9:18:26, तो हमारा रिक्वेस्ट सेम टाइम पे पास हुआ. बट जैसे मुझे रैंडम टाइमर अप्लाई करना है, तो अगेन प्रोसेस रिमेन सेम. right click on thread group, go to add, go to timer and just go to add uniform random timer. यहाँ पे दो एलिमेंट्स आपको सेट करना है, एक तो आपका मैक्स डिले एंड सम काइंड ऑफ कांस्टेंट डिले. तो एग्जांपल देखो, मैंने मैक्स डिले अप्लाई किया है, लेट्स से 7000, मतलब 7 सेकेंड का मैक्स डिले आई एम जस्ट सेटिंग अप फॉर माय रिक्वेस्ट. बट आउट ऑफ 7, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, 5 सेकेंड का कांस्टेंट डिले आई एम एक्सपेक्टिंग. Okay, 5 seconds there should be constant delay. So based on this, finally it will calculate total delay. तो total delay कितना आपने दिया है? maximum delay plus constant delay, and based on that it will take a total delay. अब ये थोड़ा ज्यादा है तो हम काम करते हैं. I will be taking this is 5 second and this is 2 second. तो total हमारा 7 second का delay है basically, right? Because uniform random timer means out of 7 your request will definitely pass. बट यहाँ पे मिनिमम कांस्टेंट डिले 2 सेकेंड का होगा, उसके बाद 3, 4, 5, 6 हर एक रिक्वेस्ट का अलग आंसर हो सकता है टिल 7 मिली सेकेंड. मीन्स जनरली 7000 मिली सेकेंड और 7 सेकेंड.
कांस्टेंट डिले सेम है 2000 एंड हमने यहाँ पे जो मैक्स डिले सेट किया है फाइनली ये कैलकुलेट करता है टोटल, तो टोटल इट हैज कैलकुलेटेड 7 सेकेंड। तो विद इन 7 सेकेंड आपका रिक्वेस्ट श्योरली सर्वर के पास सेंड होगा एंड लेट्स सी दैट। बट अगेन इसको प्रॉपरली अप्लाई करना है तो यू नीड टू ड्रैग and keep it inside a in between this both request home page and user manual. अब देखो, if I go to the table, if I clear the result, let's see how exactly the random is your request is going to the server with delay total 7000 millisecond. तो देखो पहला रिक्वेस्ट पास हुआ 34 पे एंड सी इमीडिएटली 34 आफ्टर 35 36 मतलब कांस्टेंट 2 सेकंड का डिले यहाँ पे एब्सोल्युटली अवेलेबल है एंड आफ्टर दैट यू आर पासिंग सेकंड रिक्वेस्ट, राइट? अब एग्जांपल इफ आई गो टू द रैंडम टाइमर हियर, इफ आई मेंशन नो आई वांट 4 सेकंड कांस्टेंट डिले, तो 4 + 5 टोटल इट विल बी 9 नाउ. ओके, लेट्स सी if I go back to thread group or if I go back to table, I'm not removing this result. पहले 2 सेकंड का टाइमर था, अब मैंने कांस्टेंट दिया है 4 सेकंड का. तो जैसे हमने रन किया पहला रिक्वेस्ट पास होगा होम पेज का एंड वंस इट इज स्टार्टेड आफ्टर दैट कैलकुलेट द टाइम. अब 4 सेकंड के बाद श्योरली नेक्स्ट रिक्वेस्ट पास होगा. सी 12 पे आपका पास हुआ था तो 13 14 15 16 एंड सी इट हैज टेकन 2 more सेकंड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एवरी टाइम रिजल्ट विल नॉट सेम, बट विद इन दैट टोटल जो 9 सेकंड का टाइम पीरियड है उसके अंदर आपका सेकंड रिक्वेस्ट सर्वर के पास एंड पास होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज पासिंग दिस रिक्वेस्ट टू द सर्वर. तो जनरली ये जो स्टैटिस्टिक्स है समटाइम्स हमें प्रॉपरली मल्टीपल रिक्वेस्ट के टाइमर को कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करना है, और समटाइम्स यू नीड टू चेक दैट हाउ द रिक्वेस्ट गोज टू द सर्वर, राइट, इन बिटवीन सम रैंडम टाइम. तो इस प्रोसेस के लिए टाइमर, ये डिले कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. तो जनरली ऑटोमेशन टेस्टर एंड इवन मैनुअल टेस्टर they need to work on these statistics whatever coming from the server, and based on that you will able to see the result. तो करंटली रिक्वेस्ट में डिले हम कर सकते हैं यूजिंग दिस टाइमर. अब अब तक तो हमने एक ही यूजर यूज किया था. सपोज यू आर पासिंग नंबर ऑफ यूजर दैट इज 5. नाउ द आंसर विल बी डिफरेंट, करेक्ट? एंड एवरी 2 रिक्वेस्ट के बिटवीन कितना टाइमर हमने सेट किया है? फॉर नाउ इट इज टोटल 9000 मिलीसेकेंड. डू रिमेंबर दैट. तो अभी एग्जांपल मैं इसको क्लियर कर देती हूँ रिजल्ट को एंड लेट्स रन इट. तो नाउ इट विल पास टोटल होम पेज का 5 रिक्वेस्ट एंड यूजर मैनुअल का 5 रिक्वेस्ट. देखो फर्स्ट होम पेज, उसके बाद यूजर मैनुअल का भी आपको दिखेगा. काइंडली वेट एंड चेक दैट and see the delay also. Now here there is no constant delay. ठीक है? Why we are getting 10 as a result? Because उसने पहले होम पेज के पास किया, उसके बाद यूजर मैनुअल का भी रिक्वेस्ट पास किया. अगर आपको देखना है विच वन इज अवर फर्स्ट यूजर, तो चेक हियर. ये आपका पहला यूजर था होम पेज के लिए. सेम यूजर ने क्या किया है देखो, थ्रेड नंबर 2 2 एंड -1, मतलब ये क्या है, सेम यूजर आपका है, उसने पास किया है यूजर मैनुअल का रिक्वेस्ट. सेकेंड यूजर इज कमिंग हियर. पहला रिक्वेस्ट इसने इस टाइम पे पास किया. आफ्टर दैट सर्टन टाइम पीरियड सेकेंड रिक्वेस्ट गोज टू हियर. तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे देखो 50 पे पास हुआ था, राइट? 9 22 50. आफ्टर 9 सेकेंड, कैन यू सी दैट? आफ्टर 9 सेकेंड द रिक्वेस्ट गोज टू द सर्वर. मतलब देर इज अ रैंडम डिले अवेलेबल, सो यू आर गेटिंग डिफरेंट रिजल्ट. अगर इसी सिनेरियो को हम अपडेट करेंगे विद अ कांस्टेंट डिले, तो यू विल सी द रिजल्ट इन अ कांस्टेंट टाइमर, राइट? So this is called timer. In between the request, you guys are able to set up certain timer. ये पॉइंट क्लियर है कि टाइमर का मतलब क्या है? तो देर आर कांस्टेंट और यूनिफॉर्म रैंडम, बोथ टाइमर्स यू कैन अप्लाई. तो जनरली इट विल हेल्प यू टू पॉज द एग्जीक्यूशन फॉर दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम. अब आते हैं मेन पार्ट पे कि चलो अगर जेमीटर का जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा, राइट, करंटली वी डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो वी आर टेस्टिंग इट रैंडमली ओनली. बट सपोज अगर आपको ये टेस्ट करना है कोई असर्शन, हाउ एग्जैक्टली वी कैन वैलिडेट whatever response coming from the server for a particular sampler. तो गाइज रिस्पॉन्स वैलिडेशन आप कर सकते हो, ड्यूरेशन आप टेस्ट कर सकते हो, साइज ऑल्सो यू कैन वैलिडेट. एंड हाउ वी कैन डू दैट, लेट्स अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I will be creating another thread for the assertion point, so you will understand. I will be sharing this project too. So let me, under a plan, I will be creating a new thread.
and this is a thread group, let's say 3, and I'm writing this is for assertion demo. And then under this thread group, I will be directly creating sampler. Okay, let's take a sampler, let's take a request. You can take any request, right? So currently, let me take this. Okay, there is a one more application actually available. Something called Blaze demo, right? So we can pass our request to this application also. ठीक है, ये मैं cover करूंगी recording के time पे. But let me show you manually. Suppose I am taking this request. ठीक है, बस मुझे change करना है इसका pattern. The protocol should be here and domain name should be here. Path parameter should be here. Currently there is no path, so we are just writing this, right? So I just want to show you the assertion. This is what, let me write. This is a Blaze demo request. I'm creating currently one request only. ठीक है, अब एक ही request है and let's add some listener also. So let me add a table view. Even we can add it to tree view. ठीक है, अब इस रिक्वेस्ट को अगर आपने लेट्स से आई वांट टू रन इट विद 5 डिफरेंट यूजर, ठीक है, उसके बाद जो स्टैटिस्टिक होगा बेस्ड ऑन दैट वी विल अप्लाई. तो करंटली आई एम पासिंग सम 5 रिक्वेस्ट. लेट मी रन एंड यू कैन चेक द रिजल्ट इन टेबल. तो आप देख सकते हो करंटली फॉर दिस रिक्वेस्ट वी आर नॉट गेटिंग एनी अदर रिजल्ट, राइट? आई मीन एवरीथिंग रिमेन सेम. सी बाइट डेटा आपको सेम आ रहा है, सेंड बाइट्स आपको सेम आ रहा है, टाइमिंग इट इज क्वाइट डिफरेंट. Even latency time, connection time is different because we are passing 5 different requests to the server. ठीक है, अब इस केस में अगर आपको यहाँ पे टेस्ट करना है, जैसे रिजल्ट में है कि आपका स्टेटस कोड, इफ यू चेक यू आर गेटिंग स्टेटस कोड इज टू 200. मुझे यही चेक करना है कि क्या मेरे रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड 200 है. हाउ एग्जैक्टली यू विल बी एबल टू पास दिस रिक्वेस्ट? तो लेट्स अंडरस्टैंड गाइस. अब इस केस में आप अप्लाई कर सकते हो असर्शन. How you will apply assertion? You need to right click on thread group. हेलो मैम. Yes, tell me. मैम इसमें हमने टाइमर सेट नहीं किया था, बट लास्ट रिजल्ट में 1 सेकेंड का डिफरेंस क्यों दिख रहा है फिर? Because by default thread group में ramp up period available है ना 1 second का. तो every request जब start होता है तो it will take 1 second minimum to pass a request to the server or to reach to the server side. तो by default thread में एक ramp up period available है, right? तो यहाँ पे इसी के वजह से आपका result you will be able to see in this way, right? तो बाकी कॉन्करेंट देखो, बाकी तो कॉन्करेंट है 926 926 926 ओनली. द रिजल्ट आर चेंजिंग हियर इन द मिलीसेकेंड. गॉट इट? मतलब सेकेंड्स के यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज दिखेगा, बट दैट इज ओके, राइट? तो एक और पॉइंट है कि जैसे असर्शन कैसे अप्लाई करोगे, हाउ यू विल वैलिडेट योर स्टेटस कोड एंड ऑल. तो लेट्स सी, इफ आई जस्ट गो टू हियर एंड वी हैव असर्शन हियर, ठीक है, सबसे पहले हम रिस्पॉन्स को वैलिडेट करेंगे. तो वी हैव वन असर्शन विच इज कॉल्ड रिस्पॉन्स असर्शन. अब अगेन यहाँ पे बहुत कुछ है, ठीक है, हम लोग जो रिक्वायर्ड है अभी ऑटोमेशन एंड मैनुअल टेस्टिंग के लिए वी आर जस्ट लर्निंग दैट पॉइंट, ठीक है. तो इफ आई टेक रिस्पॉन्स असर्शन तो एक और विंडो ओपन होगा. अब यहाँ से आप लोग सेटअप कर पाओगे कि व्हाट यू वांट टू टेस्ट. तो सपोज मुझे पहले टेस्ट करना है स्टेटस को, ठीक है, व्हाट द स्टेटस कोड आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्टेटस कोड शुड मैच विद 200. अब इसको मैच करने के लिए आप अप्लाई कैसे करोगे? व्हाट स्टेटस कोड एक्सपेक्टेशन कहाँ पे सेट करोगे? तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट शुड बी इक्वल. इक्वल विथ व्हाट? दैट पैटर्न यू कैन सेट अप हियर. तो ऐड, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? हियर यू कैन राइट इट शुड बी इक्वल टू 200. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर, माई स्टेटस कोड फॉर दिस रिक्वेस्ट जब ये सर्वर के पास जाएगा, सर्वर से जब मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, it should be 200 millisecond. Got it? I mean, sorry, it's not timer, it is a status code. तो ये 200 मतलब सक्सेसफुल स्टेटस कोड. मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम सर्वर के पास रिक्वेस्ट पास करते हैं ना, तो देर आर सर्टन स्टेटस कोड अवेलेबल. यू विल गेट सर्टन स्टेटस कोड. अगर आपको 100 सीरीज का कोई स्टेटस कोड मिलता है टिल 199, तो इसका मतलब ये है इंफॉर्मेशनल बेस, ठीक है. अगर 200 से 299 तक अगर आपको स्टेटस कोड मिलता है तो ये होता है सक्सेसफुल
रिजल्ट के लिए 300 वाला जो सीरीज है दैट इज यूज फॉर व्हाट वी कैन से इंफॉर्मेशन सक्सेसफुल एंड दिस इज रीडायरेक्शनल। यस, ये रीडायरेक्शनल के लिए होता है। अगर 404 499 तक अगर आता है तो वो होता है क्लाइंट एरर, ठीक है। एंड 500 एंड 599 के बीच में अगर आता है तो दैट इज कॉल्ड सर्वर एरर, ठीक है। तो समवेयर वी हैव सर्टन स्टेटस कोड फॉर स्टडी, तो ये एपीआई टेस्टिंग में भी हम कवर करेंगे। बट स्टिल अगर मुझे यही चेक करना है कि करंट रिक्वेस्ट जो भी है उसका रिजल्ट क्या है 200, तो यू कैन अप्लाई असर्शन इन बिटवीन दिस। तो आई हैव रिटन व्हाट, करंटली माय रिक्वेस्ट आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग रिस्पॉन्स कोड शुड बी 200। तो आप एक के ऊपर अप्लाई करो या मल्टीपल रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई करो। नाउ दिस टाइम असर्शन एप्लीकेबल फॉर ऑल 5 रिक्वेस्ट, करेक्ट। तो अब देखो अभी मैंने इसको ऐड किया है, assertion is applied but we need to check the result। एक रिजल्ट आपको टेबल में मिलेगा, इट जस्ट अ पैरामीटर यू आर गेटिंग। आई वांट एग्जैक्ट असर्शन रिजल्ट, तो वी हैव वन मोर लिसनर फॉर दैट। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा असर्शन रिजल्ट का एक लिसनर। तो असर्शन रिजल्ट में यू विल एबल टू सी ओनली द रिजल्ट फॉर असर्शन वॉट एवर यू हैव अप्लाई। अभी मैंने स्टेटस कोड का अप्लाई किया ना, तो इट विल सिंपल रिटर्न मी स्टेटस कोड असर्शन रिजल्ट ओनली। लेट मी शो यू। For that, I will be changing, I will be removing from the table and let me run this thread group। तो 5 रिक्वेस्ट हमारे पास हो गए। नाउ यू कैन सी आई एम गेटिंग समथिंग डिफरेंट हियर। लेट मी चेक द रिजल्ट। ओ, तो एट अ टाइम यू कैन सी 2 असर्शन मेरे सेट हो गए, तो इसने अलाउ नहीं किया। लेट मी रिमूव दिस। ओके, लेट मी जस्ट अप्लाई ओनली वन टाइम, दैट्स इट। एक अप्लाई हो गया। नाउ लेट मी चेंज द रिजल्ट। मुझे क्यों फेल्योर आया ये समझा आपको? देखो मैं आपको फिर से बताती हूँ। मैंने यहाँ पे गलती से 2 बार रिजल्ट को सेट किया, तो एक्चुअली वी आर कंपैरिजन विद द लास्ट वन जो आपने सेट किया, तो वो एम्प्टी था, इसलिए उसने एक्सेप्ट नहीं किया। फॉर नाउ आई विल क्लियर द रिजल्ट एंड वन मोर टाइम आई विल रन इट। ओके, whenever it is a successful, no you are not getting any kind of error, you can see एक ही बार हमने अप्लाई किया है। नाउ इट इज 200, तो इट इज मैचिंग विद द सेम बिकॉज करंट रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड क्या है 200 है, रिस्पॉन्स कोड इज 200। एंड इफ यू चेक इन द टेबल नाउ यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन अ पास। व्हाई? बिकॉज वी हैव पुट द असर्शन एंड विच इज पास। आई विल शो यू वन मोर एग्जाम्पल। हम अलग स्टेटस कोड लेते हैं तो आपको ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड होगा। आई विल ओपन वन साइट, request and response, it's a API and we have some sample APIs here। I'll show you if you try to delete any request। ठीक है, अब देखो ये रिक्वेस्ट है एंड इन्होंने दिया है कि जब आप ये रिक्वेस्ट को पास करोगे यू शुड गेट स्टेटस कोड व्हाट 204। लेट्स अप्लाई हियर। तो आई विल बी टेकिंग दिस URL फर्स्ट। आई विल कम बैक टू JMeter। आई विल क्रिएट अनदर रिक्वेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I will go to the sampler, let me take HTTP request and यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट को पास करती हूँ, ठीक है। Let me take this URI, let me apply protocol, let me remove from here that entire status and ये जो है user and path I will be taking here। I will be taking from here directly users and to copy, come back, let me apply the path, ठीक है। ओके, सेव। अब ये जो रिक्वेस्ट है मुझे इसको रन करना है, ठीक है। तो फॉर नाउ वी कैन सिंपल डिसेबल दिस, ठीक है। मुझे ब्लेज डेमो को रन नहीं करना है, आई वांट टू रन दिस वन HTTP रिक्वेस्ट। तो HTTP रिक्वेस्ट और मैं यहाँ पे देती हूँ दिस इज व्हाट HTTP डिलीट यूजर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास एक API है एंड व्हाट इज अवर एक्सपेक्टेशन। तो नाउ यू कैन पुट द असर्शन फॉर द सेम। मुझे यहाँ पे असर्शन बताना है कि दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग दैट माय रिस्पांस कोड शुड बी व्हाट, इट इज 204। अगर 204 है तो ये सही है, नहीं तो मुझे क्या आना चाहिए फेल्ड रिजल्ट। एवरीबडी क्लियर? नाउ लेट मी रिमूव दिस प्लेस डेमो वाला रिजल्ट बिकॉज अभी मैं अप्लाई करूंगी HTTP रिक्वेस्ट डिलीट यूजर के लिए। लेट्स रन।
And for this, now let me check what the result we are getting. Okay, so malfunction URL. Okay, something is wrong in our request. I'll go to request and REQ RES. Let me take this API also. Let's see ये API यहाँ पे काम करेगा. Let me complete the path. Let me try one more time. पहले check करने दो कि result work हो रहा है. Something we are getting and now let me check the result. हाँ, तो यहाँ पे देखो अब मुझे क्या आ रहा है कि आई एम एक्सपेक्टिंग इट शुड बी 204 बट एक्चुअली आई एम गेटिंग 200 एंड विच इज रॉन्ग. अब ये समझो कि एज पर द गिवन डेटा, ठीक है, इस साइड पे उन्होंने डेटा क्या दिया है कि जब आप डिलीट यूजर का रिक्वेस्ट पास करोगे, वन मोर टाइम, दिस इज अ डिलीट. whenever I'm passing this delete request it should be 204 only. तो मैंने क्या किया, जेमीटर में वैसे सेट किया, राइट, कि करंटली आई एम एक्सपेक्टिंग व्हाट, इट शुड इक्वल विद 204. एंड यू कैन चेक कि जितने भी हमारे रिक्वेस्ट पास हुए हैं, व्हाई आई मीन जितने भी हमारे रिक्वेस्ट सेंड हुए, व्हाई इट इज गेटिंग फेल. हियर यू कैन चेक दैट बिकॉज रिस्पॉन्स कोड सर्वर से रिसीव हुआ है 200. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट देर इज वन मोर थिंग. what we are passing delete request. So you are getting 200 because one more thing we need to update, guys, http request pattern भी update करना पड़ेगा. बट ये समझो, अगर ये गेट रिक्वेस्ट होता एंड गेट रिक्वेस्ट में व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग रिस्पॉन्स कोड शुड बी 204, तो ये सही है, करेक्ट. इस केस में मुझे क्या आ रहा है कि मुझे अलग रिस्पॉन्स कोड रिसीव हो रहा है, तो इट इज नॉट वर्किंग. बट करंटली माई रिक्वेस्ट पैटर्न शुड बी what type of request I'm passing? Delete. So let's check with delete request. ये point clear है क्यों fail हुआ? As per the expectation it should be 204 only. But जब मैंने request को set किया था तो pattern क्या था? Request का type मैंने दिया था get. तो get में आपको response receive होगा 200. So I'm getting the problem here that receive 200 and expectation is what? 204. अब इसको फिर से, इसको मैं delete नहीं करूंगी. But देखो, अब ये फिर से अगर मैंने अप्लाई किया, बिकॉज दैट एट दिस मोमेंट आई हैव चेंज द रिक्वेस्ट टाइप ऑल्सो, इट इज अ डिलीट रिक्वेस्ट. एंड सी द ब्यूटी, इफ यू रन अगेन एंड इफ यू जस्ट गो टू द टेबल व्यू, अब देखो ये पास हुआ. क्यों? बिकॉज अभी आपने क्या किया है, डिलीट करने के लिए डिलीट रिक्वेस्ट यू हैव पास, यू हैव सेंड, एंड एट दिस मोमेंट चेक द रिजल्ट ट्री. तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चलेगा. ये देखो, प्रीवियसली इट वाज अ गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, ये देखो रिक्वेस्ट का पैटर्न क्या था, गेट था, इसलिए मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ गलत रिस्पॉन्स. जैसे मैंने डिलीट वाला रिक्वेस्ट पास किया है, नाउ यू कैन चेक द रिजल्ट. हियर यू आर गेटिंग रिस्पॉन्स कोड फ्रॉम द सर्वर दैट इज अ 204. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे आप लोग असर्शन अप्लाई करोगे बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स कोड? दिस इज हाउ. तो जो भी आपका रिक्वेस्ट आप पास करोगे बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू अप्लाई द वैलिडेशन पॉइंट. तो प्रीवियस हमारा गेट वाला था ब्लेस डेमो के लिए, तो देर यू आर गेटिंग करेक्ट आंसर. अब जो मैंने सेकेंड रिक्वेस्ट पास किया है दैट इज टू डिलीट, तो वी हैव टू अपडेट योर रिक्वेस्ट टाइप एज अ डिलीट एंड फिर जाके आप लोग असर्शन को अप्लाई कर सकते हो. नाउ सपोज फॉर द सेम रिस्पॉन्स आई वुड लाइक टू टेस्ट रिस्पॉन्स मैसेज. ठीक है, अब मुझे रिस्पॉन्स कोड नहीं चेक करना है, मुझे मैसेज को चेक करना है, बिकॉज आप देख सकते हो कि व्हाट मैसेज यू आर गेटिंग, नो कंटेंट, राइट. इवन if you go to the site there is no message they have mentioned, but 204 का बेसिक मैसेज क्या है अगर आपको कंफर्म करना है, चेक इट ऑन गूगल. 204 स्टेटस मैसेज, what is meaning of this? If you check, you are getting what it is indicate that successful, but actual message, I'll better go to http site, http status code. ठीक है, सी नो कंटेंट. बेसिक इसका मीनिंग क्या है, नो कंटेंट वाला मैसेज आपको मिलेगा. चलो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं. तो कैसे करोगे अप्लाई? यू हैव टू गो टू रिस्पॉन्स असर्शन एंड सिलेक्ट हियर कि क्या टेस्ट करना है. तो दिस टाइम मुझे मैसेज को टेस्ट करना है, तो मैंने सेट किया मैसेज. मैसेज शुड बी इक्वल टू व्हाट एंड यू कैन अपडेट हियर. करंटली व्हाट मैसेज यू आर एक्सपेक्टिंग, नो कंटेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब लेट्स सी, फिर से एक बार हम जाएंगे टेबल के पास. आई विल remove everything. Suppose I will just update this time one user.
ठीक है, एक ही यूजर के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। अब देखो, लेट्स गो बैक टू टेबल एंड लेट्स रन। आई एम गेटिंग पास रिजल्ट, गो टू द ट्री, चेक दैट, सी नो कंटेंट सेम मैसेज आ रहा है, इसीलिए आपको असर्शन रिजल्ट है सेम, यू आर नॉट गेटिंग एनी फेल्यूर। इजी। कैसे रिस्पॉन्स को वैलिडेट करोगे एंड व्हाट रिस्पॉन्स यू कैन वैलिडेट? तो जनरली रिस्पॉन्स में आप लोग टेक्स्ट मैसेज, कोई हेडर, कोड, सैम्पलर, कोई भी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मैसेज, राइट, रिक्वेस्टेड डेटा, आप ये सारे पैरामीटर को बेसिकली टेस्ट कर सकते हो। बट दिस इज व्हाट रिस्पॉन्स असर्शन इन जनरल, एटलीस्ट ये स्टडी करो कि हाउ यू आर एबल टू वैलिडेट कोड और द पर्टिकुलर मैसेज, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये सब समझ में आया सबको? डिलीट यूजर का रिक्वेस्ट एंड हाउ एग्जैक्टली वी आर एबल टू टेस्ट द रिजल्ट। देखो, ये फंक्शनल टेस्टिंग नहीं है, इट इज अ परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में आपको सर्वर का रिस्पॉन्स जो रहेगा उसी के ऊपर अपडेट करना है, टेस्ट करना है। तो हियर वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज कमिंग, राइट, दिस इज आई एम गेटिंग फ्रॉम द सर्वर साइड, इसीलिए हम लोग क्या करें, इसको बेसिकली टेस्ट कर रहे, वैलिडेट कर रहे। तो दिस पॉइंट इज क्लियर? Those are completely new. Nirmala, Govind, Gitanjali, and Pavan. Is this clear? How you are validating response? Govind, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? Because we are learning performance testing. Right. Okay, Nirmala, great. यस। ठीक है. Okay, just a minute. Okay, let's see. Now I'm going to show you other assertion. तो और क्या टेस्ट कर सकते हैं? There are many things, but for us it is enough to learn this part, right? Duration. अब देखते हैं duration कैसे टेस्ट करोगे। तो देखो, ड्यूरेशन आपको टेस्ट करना है बेस्ड ऑन द सैंपल टाइम, ठीक है। अब अगर मैंने एक ही रिक्वेस्ट पास किया है, व्हाट सैंपल टाइम आई एम गेटिंग? तो यू कैन सी इन द टेबल एंड दिस इज योर सैंपल टाइम 346। फॉर दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फर्स्ट आई विल इंक्रीज माय थ्रेड नंबर, यूजर को इंक्रीज करते हैं। दिस टाइम पास ही रिजल्ट होगा, बट लेट्स रन इट अगेन। टोटल 5 रिक्वेस्ट पास हुए एंड सी वी आर गेटिंग वेरिएशंस इन द सैंपल टाइम ऑल्सो, ठीक है। अब ये वेरिएशन के बेस पे अगर आपको असर्शन करना है, हाउ यू विल एबल टू अप्लाई द सेम। तो गाइज दिस टाइम आई विल बी अप्लाइंग ड्यूरेशन असर्शन। अब देखो, मैक्स टू मैक्स वेरिएशन क्या है, तो 453 ये मैक्स है। मतलब आइदर हम टेस्ट कर सकते हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग सैंपल टाइम शुड बी लेस देन 500, देन इट इज ओके। सैंपल टाइम शुड बी लेस देन 400 लिखा तो जितने भी 400 के अबाउ है, दोज यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ फेल। ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे अप्लाई करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट, सेम थ्रेड ग्रुप पे अप्लाई करते हैं, देन वी विल गो टू असर्शन एंड देयर यू विल फाइंड आउट ड्यूरेशन असर्शन। अब ड्यूरेशन असर्शन पे आप बता सकते हो कि क्या ड्यूरेशन आपको टेस्ट करना है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ड्यूरेशन इन मिली सेकेंड, लेट्स से 500, ठीक है। अभी के लिए मैंने डिफाइन किया 500 मिली सेकेंड। तो 500 मिली सेकेंड अगर आपने अप्लाई किया है एंड लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट यू आर गेटिंग। फॉर दिस टाइम रिस्पॉन्स को मैं डिसेबल करती हूँ, ठीक है, मुझे अभी रिस्पॉन्स को टेस्ट नहीं करना है। तो मैं असर्शन रिजल्ट शुड बी फॉर ओनली ड्यूरेशन। तो हियर इफ आई गो टू द टेबल, बाय डिफॉल्ट 500 के अंदर है तो सारे के सारे पास ही रहेंगे, बट लेट्स रन इट अगेन। आई एम नॉट रिमूविंग द रिजल्ट, let me run next 5 simple request and can you see I'm getting here what everything pass। क्यों? because अभी sample time सबका time क्या है, between 500 millisecond only within that duration। अब एक काम करते हैं, suppose we are expecting sample time should be 300, ठीक है। अब क्या होगा, definitely I'm not removing again previous result, you can check everything is okay, right। बट अब मैंने सेट किया है कि विद इन 300 मेरा रिक्वेस्ट पास होना चाहिए, टोटल टाइम शुड बी टेकन विद इन 300 मिली सेकेंड। एंड इस टाइम अगर रन करोगे तो देखो रिजल्ट, एवरी रिक्वेस्ट गोज बियॉन्ड 300 मिली सेकेंड, सो यू आर गेटिंग हियर फेल्ड रिजल्ट। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जैसे आपके पास सर्वर को टेस्ट करने के लिए जो एक्सपेक्टेशंस रहेंगे इन रियल टाइम, when you have that sample time should be executed within this xyz timeout, तो वो टाइम आउट को टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यू कैन राइट ड्यूरेशन असर्शन एंड सी द रिजल्ट ऑल्सो। व्हाट मैसेज यू आर गेटिंग, ऑपरेशन लास्टेड टू लॉन्ग, it takes or it took 344 millisecond but should not have lasted longer than 300 millisecond।
मतलब जो टाइमर आपने सेट किया है, टाइमर नहीं, जो आपने ड्यूरेशन सेट किया है, what we are expecting within that duration your request will pass to the server, right? बट हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ, अभी के आपके सारे रिक्वेस्ट ने बियॉन्ड 300 मिलीसेकंड टाइम लिया, इसीलिए सारे रिक्वेस्ट फेल हुए। गॉट द पॉइंट? बट ये मैंने रैंडम सेट किया है बाय ऑब्जर्विंग द प्रीवियस रिजल्ट। रियल टाइम पे आप कैसे करोगे? रियल टाइम पे यू विल बी गेटिंग दिस रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सर्व फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू टेस्ट। So based on that expectation, you can change the duration. Everybody clear? See one more time. If I'm changing it to, again, suppose I'm expecting it should be, within 600. तो yes, आप लोग duration set करो and then you can run it. See? अब next 5 request जो हमने pass किए हैं, you will be getting all are true. I mean all are pass. क्यों? Because आपका sample time देख सकते हो within 600 है. तो you will not get any result for it. You will just get for successful normal that name that which request you have passed. Everybody clear? तो ये होता है ड्यूरेशन असर्शन जो आप साइज के बेस पे अप्लाई कर सकते हो। एंड व्हाट इज द थर्ड? थर्ड वी हैव टू अंडरस्टैंड साइज। ड्यूरेशन सैंपल टाइम पे होता है, साइज मतलब अब जो साइज इन बाइट है दैट वी कैन वैलिडेट। सी व्हाट, वेयर इज द साइज इन बाइट? सी हियर, साइज इन बाइट कितना है हर एक रिक्वेस्ट में? यू आर गेटिंग इट्स मिनिमम, अगेन वी आर नॉट गेटिंग अ सेम नंबर फॉर एवरी रिक्वेस्ट, बट यू कैन सी इट इज अप्रोक्सीमेटली 850 तक जाएगा, है ना? ये 5 रिक्वेस्ट का आप देख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली इट इज गोइंग फॉर व्हाट 850 और 830, मिनिमम 830। तो अगर ये साइज इन बाइट्स में अगर आपको अप्लाई करना है कि इट शुड बी इक्वल, इट शुड बी ग्रेटर देन, लेस देन, तो दैट इज पॉसिबल। देखो कैसे, अब मैं ड्यूरेशन को डिसेबल करती हूँ and let me apply assertion for based on size. तो there you will find out one assertion, size assertion. and ये देखो, यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो आपका entire sample. तो what we are testing for now? Currently we are testing a size. Whatever size is coming, that should be what? Suppose equal to हमने दिया तो वो exact matching करेगा, equal है या नहीं, ठीक है? मैंने दिया कि चलो it should be under, less than what? 800, 820. लेट मी राइट 820 इस साइज से लेस देन मेरा सैंपल का साइज होना चाहिए, हर एक रिक्वेस्ट का साइज होना चाहिए, ठीक है? एंड लेट्स सी नाउ व्हाट द रिजल्ट वी आर गेटिंग। तो एवरीबडी फोकस, अब ये पूरा का पूरा आपको टेस्ट करना है प्रीवियस रिजल्ट के बेस पे। करंट साइज जो आपको मिला है मैक्स टू मैक्स 812 है, मैंने यहाँ पे साइज असर्शन अप्लाई किया है, इट शुड बी लेस देन 820। लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट आई एम गेटिंग हियर इफ आई रन एज इट इज। फिर से 5 रिक्वेस्ट सेंड हुए एंड सी यू आर गेटिंग एवरीथिंग एज अ पास। व्हाई? बिकॉज दिस टाइम साइज यू आर गेटिंग 804 टू 800। तो मतलब अगर आपका साइज आपने जो भी मेंशन किया है सैंपल साइज, इफ इट इज लेस देन और अंडर दैट लिमिट, यू आर गेटिंग ट्रू रिजल्ट, पास रिजल्ट। चलो इसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं। आई एम राइटिंग नाउ इट शुड बी लेस देन 800 ओनली। इन दैट केस सी द पॉइंट, again I will go to the table, original size is this we are getting now. If we run it again, अगर 800 के बिटवीन है इट विल पास, अदरवाइज फेल। सी इट इज नॉट लेस देन 800 ना, ये अप्रोक्सीमेटली 800 ही ले रहा है, इसलिए इसने क्या किया, सारे असर्शन को फेल कर दिया। इफ यू चेक द रिजल्ट यू आर गेटिंग हियर, सी द रिजल्ट वाज रॉन्ग साइज, इट वाज 800 बाइट बट शुड हैव सीन लेस देन 800 बाइट। कैन यू सी दैट? दिस इज व्हाट आवर एक्सपेक्टेशन, वी शुड गेट साइज शुड बी लेस देन 800, बट एक्चुअल कितना मिला? 800। सो इसलिए इसने क्या किया है, फेल किया है। गॉट इट? तो जेमीटर में आप इस वे से परफॉर्मेंस को वैलिडेट करोगे। किसका परफॉर्मेंस? तो एब्सोल्युटली सर्वर परफॉर्मेंस। दिस इज द वे वी कैन वैलिडेट सर्वर परफॉर्मेंस। पॉइंट इज क्लियर? तो 3 ही असर्शन हमने सीखे हैं कि रिस्पॉन्स को वैलिडेट कैसे करना है यूजिंग रिस्पॉन्स असर्शन, ड्यूरेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल टाइम एंड द साइज इन द बाइट। जो डेटा पास करोगे उसका भी साइज आप वैलिडेट कर सकते हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर असर्शन। तो असर्शन इज अ वैलिडेशन पॉइंट। ओके, सेलेनियम में भी हम ये लर्न करेंगे असर्शन। बेसिकली इन ऑटोमेशन इन एवरी सिनेरियो वी नीड टू डू असर्शन ओनली, बट दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग परफॉर्मेंस टेस्ट। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर व्हाट इज असर्शन इन जेमीटर?
ये इजी टॉपिक है, बट आपको बस अंडरस्टैंड करना है कि आप प्रैक्टिकली कैसे करोगे एंड व्हाट पैरामीटर यू आर टेस्टिंग, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो। रिस्पॉन्स के टाइम पे क्या वैलिडेट करोगे, ड्यूरेशन का मतलब सैंपल टाइम वैलिडेट करना है, साइज का मतलब बाइट्स, जो भी बाइट्स सेंड होंगे उस बाइट को टेस्ट करो, राइट, देन ओनली यू आर गेटिंग द रिजल्ट। तो दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट हियर, तो आई हैव रिटन दिस शॉर्ट नोट्स। ओके, अब इसमें एक और पॉइंट है कि जेमीटर में आप लोग कोई भी फील्ड को पॉपुलेट करने के लिए सी दिस फंक्शंस आर डिफरेंट। ओके, जैसे हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो वहां पे जो फंक्शन है दैट फंक्शनैलिटी इज डिफरेंट, फंक्शंस वी यूज टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग। अब जेमीटर का फंक्शन कोई टास्क नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सी इसका मीनिंग इतना ही है कि दैट कैन पॉपुलेट अ फील्ड इन एनी अदर एलिमेंट ऑफ अ टेस्ट प्लान। मतलब टेस्ट प्लान में आपने जो जो ऐड किया है, जैसे कि आपके पास आपका थ्रेड ग्रुप है, राइट, आपके पास रिक्वेस्ट है, आपके पास रिजल्ट है, तो अगर इन फील्ड्स को आपको पॉपुलेट करना है विथ सम फंक्शन, मतलब मुझे मेरे थ्रेड ग्रुप में टुडेज डेट प्रिंट करना है, ठीक है, ये कौन सा थ्रेड ग्रुप है, कौन से डेट पे मैंने रन किया, आई वॉन्ट टू प्रिंट दैट। सपोज मुझे प्रिंट करना है कि कौन से मशीन से मैंने ये रिक्वेस्ट पास किया है, तो मशीन आईडी ऑल्सो आई वॉन्ट इन माई रिजल्ट। तब जाके आप क्या करोगे, आपके रिक्वेस्ट में फंक्शंस को पास करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी चेक करते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे, इफ आई गो टू द यूजर मैन्युअल एंड इफ आई कैन शो यू व्हाट इज फंक्शन, तो जस्ट ऑब्जर्व समवेयर हियर यू आर एबल टू सी द फंक्शन। अब ये देखो, J-meter functions are a special values that can populate a field of any sampler or other element of a tree। मतलब ये आपको कोई प्रोग्रामिंग वाला टास्क नहीं है, इट इज जस्ट लाइक दे हैव सम रेडीमेड फंक्शंस, आप इसको यूज करो एंड आपके फील्ड को अदर एक स्टाइल में रिप्रेजेंट करो, डिस्प्ले करो। मतलब देखो करंटली इफ आई कैन शो यू, यहाँ पे जो ट्री व्यू है मुझे क्या आ रहा है, आई एम जस्ट गेटिंग द नेम ऑफ दैट रिक्वेस्ट, यू कैन सी, ठीक है, ये मुझे आ रहा है कि चलो मैंने कौन सा रिक्वेस्ट पास किया है, तो आई हैव पास अ डिलीट यूजर। अब यहाँ पे मुझे टाइम आउट और मुझे पता करना है कि कौन से थ्रेड ने रन किया है ये रिक्वेस्ट, बिकॉज देर आर 5 ना, तो कौन सा फर्स्ट यूजर कौन है, सेकंड यूजर कौन है, अगर आपको ये पॉपुलेट करना है तो आप इस फंक्शन को यूज करो। फंक्शन का सिंटैक्स आपको फॉलो करना है दिस वे, दिस इज लाइक अ स्केलर वेरिएबल, डॉलर साइन, करली ब्रैकेट्स, टू हाइफन, एंड देन आप जो फंक्शन होगा वो फंक्शन लिखो। अगर कोई वैल्यू पास करना है तो ब्रैकेट में वैल्यू पास करो। जैसे एग्जांपल, दिस इज द सिंटैक्स फॉर व्हाट, लॉग समथिंग इफ यू वांट टू प्रिंट, कोई मैसेज अगर प्रिंट करना है तो लेट मी शो यू, इफ आई जस्ट कॉपी दिस एंड कहाँ पे अप्लाई करोगे, तो रिक्वेस्ट में, ठीक है। अब रिक्वेस्ट में मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है लॉग वाला फंक्शन, डोंट गिव स्पेस। ओके, ये जो थ्रेड आप मतलब अंडरस्कोर डिक्लेयर करोगे ना, तो उसको स्पेस मत देना, एंड देन जो भी मैसेज आपको प्रिंट करना है दैट यू कैन राइट हियर। तो सपोज आई वांट टू टेस्ट, ओके, लेट मी राइट, दिस इज डिलीट यूजर एपीआई, ठीक है, मुझे ये मैसेज को पास करना है कि दिस इज डिलीट यूजर एपीआई। लेट्स सी वेदर इट इज वर्किंग, ठीक है। तो अब देखो आपका टेबल व्यू, पहले मैं इसको रिमूव करती हूँ, क्लियर ऑल, एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन इट अगेन। ओके, अगर आप यहाँ पे कोई असर्शन नहीं कर रहे हो तो उसको डिसेबल करो, फॉर नाउ आई एम डिसेबलिंग इट। ओके, एंड लेट मी रन इट। तो लेट मी गो टू द ट्री व्यू एंड कैन यू सी, यहाँ पे मेरा मैसेज भी प्रिंट हुआ, दिख रहा है, दिस इज डिलीट यूजर एपीआई। तो ये कैसे प्रिंट हुआ, बिकॉज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को डिजाइन किया, आई हैव यूज वन फंक्शन एंड इसने क्या किया है, लॉक किया। इज दिस पॉइंट क्लियर, कैसे अप्लाई करोगे फंक्शन? बट अब मैं एक काम करती हूँ, फंक्शन के लिए भी हम सेपरेट ग्रुप को क्रिएट करते हैं, तो आपको समझ में आएगा एवरी अदर टॉपिक और सेपरेट टॉपिक। तो बेटर आई डू व्हाट, हियर आई विल, ओके ये ऑलरेडी डिसेबल है, दैट्स ओके, आई विल क्रिएट a न्यू थ्रेड ग्रुप, सी, ओके, एंड लेट मी राइट दिस थ्रेड ग्रुप फॉर व्हाट, फंक्शन डेमो, ग्रेट। एंड इस थ्रेड ग्रुप के अंदर मैं ऐड करती हूँ एक सैम्पलर, we need a request, so now we can take any request, suppose I'm taking this sample application again, place demo wala, ठीक है, and I'm just writing here कि I'm testing the response of this application, and I will be writing here HTTPS, done, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर फंक्शंस अप्लाई करना है। तो आई वुड लाइक टू राइट हियर वेरी फर्स्ट फंक्शन विच इज डॉलर, एंड फिर आप लोग करली ब्रैकेट में फंक्शन को लिखोगे, राइट? दैट इज लॉग फंक्शन, बट हाउ इट इज, अंडरस्कोर, टू अंडरस्कोर एंड देन यू नीड टू राइट लॉग, टू अंडरस्कोर लॉग, एंड मैं यहाँ पे देती हूँ, ठीक है? दिस इज प्लेस डेमो रिक्वेस्ट, ठीक है? एंड ओके, नो नीड टू पुट इवन डबल कोट्स एंड ऑल, आप डायरेक्टली लिख सकते हो आपका मैसेज जो भी आपको देना है, ठीक है? अब देखो, तो करंटली रिजल्ट टेस्ट करने के लिए वी नीड व्हाट, वी नीड अ लिसनर। तो फॉर दिस इट इज ओके दैट वी आर टेकिंग ओनली ट्री व्यू, ठीक है? अब देखो, लेट्स रन। Yeah, can you see that this Blaze demo request? Okay, let me update. This is Blaze demo request. ठीक है? Done. Save. One more time, go to tree, and just now I will be executing the same. One more time. See. आ गया, दिस इज अ ब्लेस डेमो रिक्वेस्ट। और क्या कर सकते हैं, देखो, तो देर आर मेनी फंक्शंस। अगर आपको थ्रेड नंबर देखना है, ठीक है, चलो थ्रेड नंबर के पहले मैं आपको टाइम वाला दिखाती हूँ। तो लेट्स फॉर सेट योर टाइम, व्हाट टाइम, हाउ मच, आई मीन हाउ यू वांट टू सिंपल पेस्ट द टाइम, एंड देन यू कैन अप्लाई हियर फंक्शन, ठीक है? सेकंड फंक्शन मैंने अप्लाई किया। लेट मी जस्ट रिमूव द स्पेस एंड सी इट विल बी लुक लाइक दिस, डेट, month, year, hour, minutes and second. So let's pass our request. See the change. This time, okay, why the request got not executed? Because I think if you are writing multiple, then we need to put the comma. Okay, so I'm writing here comma. Let me check one more time. No, still it is not accepting. It is a time, and why it is not taking? Okay, this time if I keep, no, but I want this request after this. Let me apply hyphen and let me check. प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? एट ए टाइम वी कैन सेट अप मल्टीपल ऑल्सो, नो इट इज नॉट, स्टिल नॉट वर्किंग। इफ आई डोंट गिव स्पेस एंड एवरीथिंग, लेट मी चेक, वेट नो, स्टिल इट इज नॉट वर्किंग। लेट मी गो टू ऑफिशियल वेबसाइट। तो एट ए टाइम अगर दो फंक्शंस को लिखना है तो दे हैव सर्टन, ओके, ये फंक्शंस है। लेट्स सी कि हम कैसे पास कर सकते हैं एट ए टाइम टू डिफरेंट फंक्शंस। आई वुड लाइक टू टेस्ट, okay, variable and all, and here we can write one function only, ठीक है? This is again based on regular expression, first argument, second argument, parameter, let me just check, ठीक है? ये ठीक है, थ्रेड नंबर हम पास कर सकते हैं, बट अगर मुझे एक साथ प्रिंट करना है तो क्यों नहीं हो रहा है वो? जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं है, तो गाइस लेट मी ट्राई हियर ओनली। सपोज दिस टाइम, ओके, लेट मी चेक फर्स्ट कि एक फंक्शन काम कर रहा है प्रॉपरली। If I remove this, okay, and if I go to tree and if I run this, क्या टाइमर वर्क हो रहा है? अच्छा, हो रहा है, हो रहा है, but only the problem is we are not able to run at a time both. Okay, तो maybe at a time only one is accepted, but no, this should not be the case. अभी के लिए मैं इसको कमेंट में लिखती हूँ। Okay, और what I'll do now, I'll simply do one thing. I'll just copy this and I'll create a one more request. ठीक है? तो पहला रिक्वेस्ट है जिसमें मैंने सपोज ये वाला फंक्शन यूज किया है, लॉग वाला। तो आई विल बी राइटिंग अगेन, सी, चलो अलग अलग दिखते हैं, एनीवेज वी नीड। तो आई विल चेक दैट कि एट ए टाइम हम दो पास कर पाएंगे या नहीं, बट स्टिल दिस इज ब्लेज डेमो रिक्वेस्ट, ओके, डन। एंड लेट्स सी दिस टाइम, अगर मैंने दो रिक्वेस्ट को एट ए टाइम यहाँ पे डिफाइन किया है तो हाउ इट इज वर्किंग नाउ।
अब देखो, अब ये दोनों सेम रिक्वेस्ट बट आई एम गेटिंग इन बोथ डिफरेंट रिजल्ट, ठीक है, फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। एनीवेज ये बस पॉपुलेट करने के लिए यूज है, इसका बाकी यूज नहीं है। चलो, मुझे अगर थ्रेड ग्रुप को पास करना है, थ्रेड नंबर आई वांट टू चेक, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ विद दिस मैसेज, सपोज आई विल कीप दिस थ्रेड नंबर, लेट्स सी हाउ इट इज वर्किंग। तो लॉग रन हो रहा है बट फॉर थ्रेड नंबर आई एम नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट, राइट। I will go up and after this I will put the comma. Let me check it should work. No, इसका मतलब फिर से हमें इसके लिए सेपरेट डिजाइन करना होगा, लेकिन ना ये होता है। आई नीड टू चेक दैट कि आप एट ए टाइम भी मल्टीपल फंक्शंस यू कैन सेट अप। जस्ट अ मिनट। Fine, I'll do one thing. I'll again paste this. I can copy and I can paste and see that कि अभी यहाँ पे अगर मैंने वो नंबर वाला अप्लाई किया तो हाउ इट विल बी। तो यहाँ पे आपको बस प्रिंट होगा सिंपल थ्रेड नंबर। द रिक्वेस्ट इज दिस, मतलब ये वाला फंक्शन मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे दैट नंबर, थ्रेड नंबर, ठीक है। जस्ट रिमूव द स्पेस। तो एट दिस मोमेंट एब्सोल्युटली देयर इज ओनली वन थ्रेड, ठीक है। तो इसका रिजल्ट तो एक ही रहेगा, राइट। जैसे एग्जाम्पल व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई विल फर्स्ट क्लियर द रिजल्ट एंड लेट्स अप्लाई इट अगेन एंड सी। तो अभी आप देख सकते हो एक ही रिक्वेस्ट हमने पास किया है बट तीनों का मीनिंग, एक पे डेट सिलेक्ट हो रहा है, मतलब डेट आपको प्रिंट हो रहा है, दूसरे के ऊपर मैसेज एंड तीसरे के ऊपर क्या है, थ्रेड नंबर। वी आर गेटिंग दिस वे। व्हाट इज द नेक्स्ट फंक्शन? सपोज मशीन आईपी एंड मशीन नेम इफ यू वांट टू प्रिंट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो लेट मी शो यू। अगेन आई डू व्हाट, आई कॉपी एंड आई क्रिएट वन मोर रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इस रिक्वेस्ट में हम मशीन आईपी को प्रिंट करते हैं। So how you are able to do that? Just need to write a function name machine IP, ठीक है। एंड यू कैन चेक द फंक्शन अगेन हियर मशीन आईपी, ठीक है। कैमल केस फॉर्मेट ही है। अब इस केस में क्या होगा, जैसे मैंने रिक्वेस्ट पास किया, इट विल शो मी व्हाट, आईपी एड्रेस ऑफ द करंट मशीन जहां से हम रिक्वेस्ट को पास करेंगे। तो सी, दिस इज कमिंग एज आईपी एड्रेस ऑफ अ करंट मशीन जहां से हम रिक्वेस्ट को पास करेंगे। सिमिलरली इफ आई अपडेट टू नेम, ओके, तो अब देखो, लेट मी क्लियर द रिजल्ट एंड लेट मी पास हियर अगेन दिस रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, नेम ऑफ माय करंट लैपटॉप, ठीक है। तो आई एम गेटिंग मशीन नेम, मशीन आईपी एड्रेस। तो दीज आर द टू फंक्शंस दैट यू कैन फॉलो जस्ट टू पॉपुलेट द फील्ड। एंड एक और है, कुछ अगर आपको एडिशन वगैरह प्रिंट करना है, राइट, तो एक्चुअली वी डोंट नीड टू परफॉर्म एनी मैथमेटिकल फंक्शन हियर, बट स्टिल अगर ये देखना है तो देखो कैसे आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो लेट मी अगेन कॉपी, लेट मी पेस्ट इट टू प्रिंट समवेयर सम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट और वॉट एवर इट इज। तो आप यहाँ पे इस सम को कैसे प्रिंट करोगे, यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड, आई मीन फंक्शन int sum। तो वी हैव int sum इफ यू वांट टू रियली चेक दैट व्हाट इज द पर्पस। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने मीनिंग दिया है। इफ यू गो टू दैट फंक्शन एंटायर लिस्ट, सी हियर इट इज अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट है कि आप क्या क्या कर सकते हो। सी, इंट सम add to integer number, the function meaning is same। if you really want to add to integer number तो आप यूज कर सकते हो इस मेथड को, बट वी डोंट नीड इट फॉर नाउ। अभी के लिए मैं इसको सिंपल ऐड करती हूँ कि सपोज मुझे बस प्रिंट करना है, लेट मी प्रिंट अंडरस्कोर एंड आई वुड लाइक टू प्रिंट हियर 20+30, ठीक है, 50। 20+30 रिजल्ट को प्रिंट करना है। तो गाइज लेट मी शो यू, अगर ट्री को आप फिर से क्लियर करके रन करोगे, सी द ऑल फंक्शन रिजल्ट। ओके, लैपटॉप भी डिस्प्ले हो रहा है नेम एंड यू आर गेटिंग दैट एडिशन ऑल्सो। तो बेसिकली फंक्शंस आर नॉट यूजफुल हियर इन जेमीटर टू परफॉर्म सम टास्क, बट आपके पास जितने भी रिक्वेस्ट है, अगर उस फील्ड को पॉपुलेट करना है विथ थ्रेड नंबर, विथ टाइम, विथ सम लॉग और विथ सम द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड ऑल, देन यू कैन यूज दिस फंक्शन। तो यहाँ पे
कोई भी हम फंक्शनैलिटी या टास्क को परफॉर्म नहीं करेंगे. दीज आर सम रेडीमेड फंक्शंस दैट यू कैन ट्राई एंड यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट सर्व. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब इसमें एक और टॉपिक है कि जेमीटर में आप लोग रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो. ठीक है. जनरली जेमीटर इज अ टूल दैट वी कैन यूज फॉर फंक्शनल टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग. तो आप इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करोगे? अगर आप मोजिला फायरफॉक्स से करोगे तो आपको प्रॉक्सी सेटअप करना होगा. तो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल बी शोइंग यू डायरेक्ट रिकॉर्डिंग वे. दैट्स अ ब्लेज मीटर. ब्लेज मीटर एक अनदर प्लगइन है जो आप क्रोम पे अटैच कर सकते हो. एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लेज मीटर प्लगइन यू कैन जस्ट क्रिएट अकाउंट एंड देन यू कैन सिंपल स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर टेस्ट. तो लेट मी शो यू डायरेक्ट वे बिकॉज वी डोंट नीड टू सेट अप एनी प्रॉक्सी एंड ऑल. तो अगर आपको डायरेक्टली ब्लेज मीटर से करना है, हाउ एग्जैक्टली यू विल बी एबल टू डू दैट? तो पहला पॉइंट, अगर रिकॉर्डिंग करना है तो आई विल बी टेकिंग माई न्यू थ्रेड अगेन. ओके, फॉर दिस लेट मी सेव and here I'm taking that new thread. Even we don't need it actually. Let me show you. अगर मैंने यहाँ पे create भी किया कि under this thread group what I want, first of all sampler वगैरह हम automatic लेंगे, but I need here recording controller. ठीक है. पहला point आपके पास controller important है. दूसरा point हम add करेंगे कुछ config elements. Just a minute. Listeners, okay, we need a listeners and all, so I will be taking here tree view. ठीक है. एंड अब इसमें लॉजिक कंट्रोलर मुझे ऐड करना है. तो इफ आई गो टू दिस रिकॉर्डिंग तो मैंने लिया है. आई डू वन थिंग, आई राइट क्लिक ऑन अ प्लान एंड प्लान के अंदर लेट्स टेक सम नॉन टेस्ट एलिमेंट. या आई नीड दिस HTTP टेस्ट स्क्रिप्ट रिकॉर्डर. ठीक है. तो अब ये रिकॉर्डिंग एक्चुअली आपको कब लगेगा? जब आप प्रॉक्सी सेटअप करोगे. अभी अगर लेट मी चेक विद डायरेक्ट सेटअप कि हमें क्या रिजल्ट आता है. ठीक है. तो डायरेक्ट सेटअप मतलब क्या? कि आपको क्रोम पे ही ब्लेज मीटर को इंस्टॉल करना होगा. इट्स अ प्लगइन. तो इफ यू ओपन गूगल एंड इफ यू जस्ट सर्च फॉर ब्लेज मीटर, ओके, ब्लेज मीटर क्रोम एक्सटेंशन, यू कैन सी. तो आपको ये मिलेगा ब्लेज मीटर कंप्लीट continuous testing platform or you'll be getting blaze meter chrome exception record jmeter. तो I will take this one. ठीक है. अब यहाँ पे already I have installed that plugin. ठीक है. This process you need to do for your machine. So when you open your at your side, when you open this chrome extension, ठीक है, so definitely here you can see, you will be able to see this extension and here आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो. सी, इंस्टॉल द ब्लेज मीटर क्रोम एक्सटेंशन. जब आप इसको इंस्टॉल करोगे यू विल ऑटोमेटिकली गेट इट हियर इन द क्रोम. बाय डिफॉल्ट मेरे पास अवेलेबल है. तो देखो मुझे ऑप्शन आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम. आप लोग क्या कर सकते हो? जस्ट टू इंस्टॉल. तो इट्स हार्डली 1 सेकेंड, राइट? इट विल टेक 1 सेकेंड एंड यहाँ पे आपका ब्लेज मीटर अवेलेबल होगा. तो यू कैन सी करंटली आई एम गेटिंग दिस व्हाट, दिस इज द ब्लेज मीटर. ठीक है. इसमें सबसे पहले आपको लॉगिन करना है. सपोज एग्जांपल आपने इंस्टॉल किया तो डू लॉगिन. नाउ लेट मी डू लॉगिन हियर. आई विल बी लॉगिन विथ माय गूगल अकाउंट. लेट मी राइट. जस्ट अ मिनट, लेट मी लॉगिन. लास्ट टॉपिक है. ठीक है. जैसे आप ये इंस्टॉल करोगे, जैसे आप इसको लॉगिन करोगे, देन यू विल एबल टू नोटिस. ठीक है. फिर से एक बार ओपन करते हैं. सी हियर यू आर गेटिंग दैट ब्लेज मीटर. देखो लॉगिन होने के बाद आपको इस वे से व्यू आएगा. ठीक है. तो अब जितने भी मैंने टेस्ट रन किए होंगे, जो भी किया है, राइट, दैट इंफॉर्मेशन यू कैन ऑब्जर्व हियर. तो इनका ये सेपरेट डैशबोर्ड भी है. बट फॉर नाउ वी डोंट नीड अ डैशबोर्ड. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई वांट एप्लीकेशन टू बी ओपन. तो आई विल बी ओपनिंग हियर ब्लेज डेमो application. Let me go to Google directly.
एंड गूगल पे मुझे एप्लीकेशन को ओपन करने दो, ब्लेज डेमो, ठीक है। तो सोचो कि अभी इस एप्लीकेशन पे मुझे रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है। आई वांट टू टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, पहला तो पॉइंट लॉग इन करना है। हियर यू विल गेट द रिकॉर्डिंग बटन, यू नीड टू जस्ट क्लिक एंड सारे स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म करो जो भी आपको करना है। एनीवेज इट इज अ सैम्पल एप्लीकेशन, तो वी कैन टेक इट फॉर अ डेमो पर्पस। तो आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग, एवरीबडी फोकस। आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। नाउ इट विल कैप्चर एवरी स्टेप। एग्जाम्पल, आई विल गो टू हियर। अब मैंने कोई यहाँ पे एक लोकेशन सिलेक्ट किया है, पोर्टलैंड। Then I'm selecting here London. Let me find the flights. See, it is navigating to next page. ठीक है। अब सपोज मुझे यूनाइटेड एयरलाइंस का फ्लाइट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं कोई डेटा सिलेक्ट नहीं करूंगी। आई विल जस्ट स्क्रॉल डाउन। बस मैं परचेस करूंगी फ्लाइट एज इट इज अ डेमो एंड सी आई एम नेविगेटिंग टू दिस पेज। दैट्स इट। तो ये यूआई टेस्टिंग हुआ। अब आपने किया है परफॉर्मेंस वाला पार्ट। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग जैसे स्टॉप करोगे, ओके लेट मी स्टॉप डायरेक्टली एंड देन यू कैन चेक इट अगेन इन द डेमो। तो यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग रेडी है एंड इट इज आस्किंग यू डू यू वांट टू रन इट और डू यू वांट टू सेव इट। सबसे पहले ये ब्लेज डेमो का देखो, टेस्ट ब्लेज डेमो ऐप डायरेक्टली आपको मिलेगा। ओके, इफ आई जस्ट से सेव, आई वांट टू सेव इट, तो इट इज आस्किंग यू क्या आपको जेमीटर एंड सेलेनियम का कंबाइंड फाइल रिक्वायर्ड है या आपको बस सेलेनियम का रिक्वायर्ड है या बस जेमीटर का। करंटली वी आर नॉट लर्निंग सेलेनियम, तो आई वांट जेमीटर फाइल। आई विल बी सिलेक्टिंग जेमीटर। बाय डिफॉल्ट इट विल कैप्चर सम डोमेन नेम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये सेव एज अ सिंपल blazdemo.com एंड सेव इट। अब ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग एक्सपोर्ट होगा एंड इट विल सेव इन योर मशीन, ठीक है। देखो मेरे डाउनलोड में सेव हो गया, राइट। अब हमें करना क्या है, यू कैन डायरेक्टली गो टू योर थ्रेड ग्रुप। ओके, हियर आई विल डू व्हाट, आई विल ओपन इट। ओपन करना कौन सा फाइल है, तो गो टू द डाउनलोड सेक्शन। अभी का जो फाइल है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा एंड यू कैन सी दिस इज द JMX फाइल। नाउ लेट मी ओपन इट। तो देर आर टेस्ट have not been saved, do you want to save before clearing the test plan? Okay, one more point है, देखो जैसे मैं इस रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन को, मतलब ये मेरा न्यू थ्रेड है, इफ आई एम ट्राइंग टू ओपन इट, इट इज आस्किंग मी कि जो प्रीवियस आपने वर्क किया है यू नीड टू सेव दैट बिकॉज इट विल ओपन इन ए न्यू टेस्ट प्लान बाय डिफॉल्ट। तो अभी के लिए मैं सेव करती हूँ, ठीक है। एंड देखो आगे आपका एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर थ्रेड ग्रुप रहेगा। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर देखो कितना ब्रिलियंट है, 3 उसने रिक्वेस्ट को जनरेट भी किया। सबसे पहला वाला रिक्वेस्ट था जहां पे आपने लोकेशन सिलेक्ट किए। सेकंड रिक्वेस्ट था जहां पे आपने कुछ फ्लाइट को परचेस किया है यूनाइटेड एयरलाइंस। एंड तीसरा रिक्वेस्ट भी ऑटोमेटिक जनरेट हुआ, मैंने तो कोई डेटा फिलअप नहीं किया, तो आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, बट दिस इज हाउ द ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट यू आर गेटिंग। अब बस एक ही काम करो, क्या करना है, आइदर यू कैन अपडेट थ्रेड ग्रुप or you can just click and add here some listener. Okay, let me take listener, table and tree. Easy. तो ये भी फैसिलिटी जेमीटर में है कि इधर आप मैन्युअली करो, एक एक रिक्वेस्ट को टेस्ट करो, और डायरेक्टली यू कैन डू व्हाट, रिकॉर्डिंग। अब कितना इजी है, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ, सपोज कुछ असर्शन अप्लाई करना है इस प्रोजेक्ट में, यू कैन डू दैट, बट फॉर नाउ देर आर 3 रिक्वेस्ट, राइट। अब अगर मैं एक ही यूजर से पास करूंगी तो मुझे 3 आंसर्स मिलेंगे, एक यूजर 3 अलग अलग रिक्वेस्ट को पास करेगा। देखो आई विल जस्ट रन इट। फर्स्ट रिक्वेस्ट पास हुआ, नाउ इट इज पासिंग सेकेंड वन एंड हियर यू कैन चेक दैट थ्रेड ऑल्सो। देखो एक ही यूजर है, थ्रेड नंबर 1 एंड यूजर 1 ऑल्सो, एंड स्टिल इट इज एग्जीक्यूटिंग। तो काइंडली वेट एंड वी आर गेटिंग दैट। ओके, 3 रिक्वेस्ट पास हो गए, मतलब टोटल टेस्ट हमारा पास हो चुका है। तो यू आर गेटिंग रिजल्ट फॉर टेस्ट ऑल्सो। ओके, द टेस्ट इज ऑल्सो पास एंड टोटल टाइम, टोटल मिली सेकेंड आप देख सकते हो, टोटल बाइट कितना सेंड हुआ, दैट टोटल रिजल्ट यू आर गेटिंग फॉर दैट एंटायर टेस्ट। तो दिस इज व्हाट रिकॉर्ड एंड प्लेबैक फैसिलिटी विच इज अवेलेबल इन JMeter। बट इसके 2 ही रूल है। अगर आप क्रोम से करोगे तो इट इज क्वाइट सिंपल बिकॉज इट इज पॉसिबल टू रिकॉर्ड द स्क्रिप्ट यूजिंग BlazeMeter। जो प्रॉक्सी वाला सेटअप है दैट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, तो आई विल सजेस्ट गो विद द क्रोम। वी हैव अ रेडीमेड टूल एंड हियर इन द BlazeMeter ऑल्सो यू आर एबल टू सी दैट, ठीक है। जैसे आपका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है, इफ यू गो टू द BlazeMeter साइट,
there also you will, I mean you will get your separate dashboard. वहां से भी आप अपने क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो. तो दिस इज व्हाट द थिंग्स आर अवेलेबल ड्यूरिंग परफॉर्मेंस टेस्टिंग. एटलीस्ट ये बेसिक आपको पता होना इंपॉर्टेंट है. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो प्रोसेस ऑल्सो आई हैव रिटन हियर. क्या करना है, फाइल कौन सा सेव करना है, एंड दैट यू कैन ओपन डायरेक्टली इनटू जेमीटर एंड यू कैन रन इट. तो जैसे रन करोगे, अगर आप मल्टीपल यूजर से करोगे तो करंटली 3 रिक्वेस्ट है ना. अगर मैं थ्रेड ग्रुप यहाँ पे पास करती हूँ तो क्या होगा, यू विल गेट अकॉर्डिंगली रिजल्ट. ओके, जैसे एग्जाम्पल सी, वन मोर टाइम आई एम एग्जीक्यूटिंग. यहाँ पे नंबर चेक कर लो कौन सा यूजर रन हो रहा है. देखो, पहले यूजर ने पास किया पहला रिक्वेस्ट, सेकेंड यूजर ने पहला रिक्वेस्ट, फिर से पहले यूजर ने दूसरा रिक्वेस्ट, सेकेंड यूजर ने भी दूसरा रिक्वेस्ट. दिस इज हाउ यू विल एबल टू टेस्ट. क्लियर? तो ये है एग्जैक्टली जेमीटर कॉन्सेप्ट. तो जेमीटर इज अ परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल. यहाँ पे डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेक्टेशन हम लोग टाइमिंग, लोड टाइम, कनेक्टिविटी टाइम, लेटेंसी टाइम दैट वी कैन वैलिडेट. And this is what at a fresher level you should know. Is this point clear, everybody? What is JMeter? So I will be sharing this notes. Actually, notes मैंने share किया है, but follow the recording and try to complete your practical. ठीक है? Okay, निर्मला, आपके पास कौन सा मशीन है? मतलब it's office laptop or you have your own laptop? Because JMeter personal है ना, तो JMeter installation is very easy. आपको कुछ installation करना ही नहीं है. You need only zip file. If you have that file, store it and just open your JMeter tool. I'll do one thing, guys. I'll just save it first. I would like to save it as a test plan and let me go to my folder. Just a minute. JMeter result. Blaze demo run runner. ठीक है? And then you can close directly. No issues. Let me log out here. Okay, if I go to the profile, you will be able to see profile like this. Fine. तो एनीवेज वी आर अंडरस्टैंडिंग मैनुअल टेस्टिंग पार्ट. तो ये पीपीटी मैंने आपके ग्रुप पे शेयर किया था, बट स्टिल यू कैन चेक इट, राइट? बाकी सारे डिटेल मैं आपको ईमेल पे शेयर करूंगी. ठीक है? ओके, तो लेट मी क्लोज दिस ब्राउजर. फाइन. एंड वेयर वी आर. तो गाइस, ये जेमीटर का पीपीटी है जो मैंने आपको शेयर किया है. द बेसिक्स वी हैव डिस्कस इन द लास्ट सेशन, आई थिंक ऑन फ्राइडे. एंड ये सारे इसके कंपोनेंट एंड इसके मीनिंग्स है कि एग्जैक्टली क्या है. एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन कि जेमीटर कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है एग्जीक्यूशन करने के लिए. तो यू नीड टू फोकस ऑन दिस पार्ट. ठीक है? या निर्मला, आई विल बी चेकिंग दैट. यस यस, आई गॉट टू नो दैट कि आपने मुझे एक मैसेज भेजा था कि आपको कुछ एरर आ रहा है ना, जेमीटर का जार फाइल एक्सेप्ट नहीं हो रहा है समथिंग. ठीक है, ठीक है, आई विल चेक दैट. काइंडली वेट. डू यू हैव टाइम ना? यस. फाइन. So for this today we have completed our JMeter tool and we have seen like how we can perform performance testing. Coming back to our main topic, okay? जो हमने start किए थे, that's a manual testing. Types of testing we are learning and even we are learning validation. So in validation I have completed this performance testing wala part, right? And now it is time to discuss some other types where we are going to discuss after performance. We have to understand some recovery testing means what, configuration means what. So I think we will continue this topic again in the next session. Will that be okay? तो ये थ्योरी वाला जो पार्ट है हम न्यू सेशन में स्टार्ट करेंगे. टुडे एनीवेज वी हैव कंप्लीटेड व्हाट, our performance testing part. Okay, so we will continue this remaining theory in the next session. Okay, those want to leave the class, those can left it. Nirmala, can you please share your screen? Let me check the problem with the Nirmala's installation part. ठीक है? बाकी पार्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे.
बाय, थैंक यू। Yeah, hi Nirmala. Just a minute. Huh? हम्म सो आई थिंक निर्मला आप अपना स्क्रीन शेयर करो, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. लेट मी फर्स्ट गिव यू द एक्सेस. नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन. लेट मी चेक कि इशू क्या हो रहा है, ठीक है. हाँ, तो ये क्लोज कर दो. पहला पॉइंट. फर्स्ट शो मी व्हाट यू हैव डिड सो फार. ओके, गो बैक. पहला पॉइंट इसको बैक करो. शो मी योर कंप्लीट फाइल. गो बैक. ओके, ओपन नाउ सी ड्राइव. आपने एक्सट्रैक्ट किया है फाइल, राइट? ओपन इट. गो टू द बिन. पिन में जाके जेमीटर का विंडोज बैच फाइल आपको मिलेगा. या डबल क्लिक ऑन दैट. पहला पॉइंट, निर्मला जेडीके अवेलेबल है? ओके, यहाँ पे एक काम करो, इसने बोला है ना कि अच्छा ठीक है. ओके, जस्ट प्रेस एनी की टू कंटिन्यू. हेलो बोलो. मैम, इन्होंने आई थिंक एक्सट्रैक्ट नहीं की है फाइल। हाँ, जिप मुझे फाइल भी ही वही ओपन। लगा, मुझे भी वही लग रहा है, इसलिए मैंने पहले फाइल चेक किया, बट आई थिंक इट इज एक्सट्रैक्टेड. वो सारे बहुत सारे फाइल्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना. निर्मला आपने फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है? एक काम करो, कैन यू कम बैक टू सी ड्राइव. हाँ, राइट क्लिक ऑन दैट फाइल. राइट क्लिक करके चेक करो कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है. इज इट आस्किंग यू टू एक्सट्रैक्ट? नहीं, डायरेक्टली. ओके, तो यहाँ पे ओपन करके आ रहा है. हाँ, मतलब एक्सट्रैक्ट हो चुका है. बट आफ्टर ओपनिंग, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास पहले जेडीके अवेलेबल है? हैव यू इंस्टॉल जेडीके? यस, राइट. ओके, अब ये वर्क होना चाहिए. फिर ओपन करो फिर से एक बार. ओके, एक काम करो, इसको की प्रेस किया तो कुछ नहीं हो रहा है ना. चेक इट. प्रेस एनी की. हम्म एक काम करो, स्क्रॉल डाउन योर पेज. ठीक है, एक मिनट एक मिनट. विंडोज सर्वर, ये जेमीटर सर्वर का विंडोज बैच फाइल भी अवेलेबल है, राइट? आई थिंक ना आपको ये अलग क्यों आ रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज यू आर गेटिंग मेनी फाइल्स. दिस शुड नॉट बी द केस. फाइल वहां पे बहुत ज्यादा नहीं है. एक काम करो, फिर से एक बार इंस्टॉल करो. आई मीन गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जेमीटर डाउनलोड. हाँ, गूगल पे जाके सर्च करो जेमीटर डाउनलोड. यस, गो टू रिलीज. बाइनरी में जिप फोल्डर. यस. ओपन ओपन दैट. ठीक है. अब ये जो जिप फाइल है उसको कट करो. एक काम करो, सी ड्राइव वाला जो फाइल है पहले उसको डिलीट कर दो. इसको डिलीट कर दो. एंड आपके डाउनलोड में जो फाइल है वो यहाँ पे आके पेस्ट करो. टेक दैट कंप्लीट. टेक दैट कंप्लीट फाइल. कंटिन्यू. अब इसको एक्सट्रैक्ट करो यहाँ पे. आई थिंक ना मुझे आपके डाउनलोड में सोर्स वाला फाइल दिखा, मतलब आपने जो डाउनलोड किया था पहले वो सोर्स था. द बाइनरी शुड बी डाउनलोडेड, ठीक है.
करो एक्सट्रैक्ट। हम्म। अब ये पूरा प्रोसेस होने के बाद जो प्रीवियस का जिप फाइल है उसको आप डिलीट कर दो। पहले होने दो ये पूरा प्रोसेस। ओके एंड एवरीबडी, दोज आर फॉर आईएसटी क्यूबी, काइंडली गो फॉर द एग्जाम। ठीक है, आई थिंक पवन इज देयर, गोविंद, निर्मला, सडाफ, यू नीड टू गो फॉर द एग्जाम, राइट? और निर्मला, आप कौन से लोकेशन से हो, ऑफलाइन करोगे या ऑनलाइन? पुणे, राइट? तो यू आर कमिंग टू ऑफिस? यस, दैट विल बी बेटर बिकॉज आपके मशीन का प्रॉब्लम है, माइक एंड इज दिस इज नॉट वर्किंग, राइट? तो मैंने कल एक पेपर शेयर किया है, जस्ट प्रिपेयर दैट वन, दैट इज इनफ। मैम 7th को एग्जाम है ना वो? हाँ, 7th को हम शेड्यूल करें गोविंद, बिकॉज ना वीकेंड है तो सबको टाइम मिलेगा, राइट? यस, मैं ऑनलाइन ही दे दूंगा। गोविंद, कौन से लोकेशन से हो? पुणे। लेकिन आई विल सजेस्ट कम टू ऑफिस। अगर अ, नेटवर्क इशू आता है, बिकॉज आपने अगर कल का सेशन कल का अटेंड किया था क्या? नहीं मैम, मेरा दोनों भी दिन ऑफिस था। हाँ, तो फिर कल सर ने जो एक्सप्लेन किया ना कि जैसे अगर आप ऑनलाइन भी देते हो, यू नीड टू कीप योर कैमरा ऑन, प्लस आपके बैक साइड से भी आपको एक मोबाइल ऑन रखना पड़ेगा, एंड इट चलिए विल बी ट्रैक। तो मेरा सजेशन होगा, अगर आप पुणे लोकेशन से हो, जैसे कि सोलापुर से लोग आ रहे हैं पुणे तक, तो मेरा सजेशन है कि आप ऑफिस में आके दे दो। मैम, एक्चुअली सीन क्या है, 7 तारीख को हमने न्यू होम परचेज किया है ना, उसका ओपनिंग है। ओ, तो ये है। ऑनलाइन दिक्कत होगा गोविंद। इफ यू वांट, यू कैन ट्राई ऑन 6 अप्रैल, दैट्स ओके। मैम 6, 7, 8 और 9 चारों दिन फंक्शन है घर पे, मतलब बड़ी पूजा रखी। तो कोई दूसरा दिन होगा? हाँ मतलब विजिट करके, विजिट करके देना अगर होगा ना, तो आई विल सजेस्ट, बिकॉज ना अगर आपका गलती से नेटवर्क जाएगा, कुछ भी अलग प्रॉब्लम आता है, तो दैट विल बी प्रॉब्लम। मैम एनीवेज। नेटवर्क। हम्म। तो मैम नहीं, थोड़ा आप सा लोग सेटअप मैनेज कर सकते हो तो आप अपने अपने साइड से दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं, देखो मैंने कल का रिकॉर्डिंग शेयर किया है, जस्ट गो फॉर दैट अगेन। वेंडर ने क्या क्या एक्सप्लेन किया है वो पहले एक एटलीस्ट वो देख लो, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? ओके। या, यस। तो अभी कहाँ तक आ गए हम लोग, निर्मला? नाउ यू कैन ओपन विंडोज बैच फाइल। ये हो जाएगा निर्मला। आई थिंक पहले वाला जो था ना, वो आपने ओपन किया था सोर्स वाला, डाउनलोड किया था सोर्स वाला, इसीलिए नहीं हुआ। हो गया? ग्रेट। करो अभी प्रैक्टिस। ठीक है, चलो। ओके एवरीवन, सो जो भी आपका एग्जाम का रहेगा टुडे, वेंडर आपको ईमेल शेयर कर देंगे, ठीक है? तो बाद में आप लोग अपने अकॉर्डिंग एग्जाम शेड्यूल कर लो, बट आई वुड सजेस्ट कि 7th अप्रैल तक आप दे दो। दैट विल बी अगेन अ ग्रेट टाइम फॉर यू, एंड प्रिपरेशन जितना मैंने सेंड किया है उतना ही करो। इट डजेंट रिक्वायर मच मोर, ठीक है? ओके, ओके मैम। ऑल द बेस्ट। मैम चलो सुनो, ठीक है, बोलो। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूँ क्या? मैंने अभी तक है ना जेमीटर, उस दिन का सेशन में मैं नहीं था, और अभी दो हम्म। दिन भी नहीं था, तो मैंने इंस्टॉल मुझे कैसे करना है वो पता ही नहीं, मेरा इंस्टॉल भी नहीं हुआ है। मैंने जस्ट अभी ट्राई करके देखा जब आप निर्मला को बता रहे थे, हम्म। गाइड कर रहे थे, हम्म। पर समझ नहीं आ रहा। अब एक बार बताओगे? हाँ चलेगा, श्योर। शेयर करो अपना स्क्रीन। मैम विजिबल हो रहा है? हाँ, अब आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है, डाउनलोड रिलीज। ये वाला? हाँ, राइट। एंड देन गो टू बाइनरी। जिप। नो 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 नो, बाइनरीज में जिप वाला फाइल, वही है, बट जिप वाला। दो है ना उसमें, तो हाँ, हाँ राइट। सेकंड वन जिप पे, जिप के ऊपर जब क्लिक करोगे तो जिप वाला फाइल डाउनलोड होगा, करेक्ट? इसको ओपन करना है ना मैम? हाँ, अभी नहीं, ओपन मत करो। अभी क्या करो ना, ये जो फोल्डर है उसको पूरा का पूरा कॉपी करो। डू वन थिंग, गो टू डाउनलोड डायरेक्टली, यस। हाँ, तो इसको
वेट वेट वेट, वेयर इज द डाउनलोड? हाँ, किया कॉपी। नहीं आपने जिप जिप क्यों नहीं दिख रहा है फिर? ये कॉपी कैसे किया? गो टू डाउनलोड अगेन। देखो वहां से नहीं, हाँ डायरेक्टली फाइल सिस्टम पे जाओ। हाँ क्लिक ऑन दैट। हाँ ये है जिप फाइल, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हाँ ना? इसको, यस इसको कट करो वहां से, उस ठीक। लोकेशन से कट करो, राइट क्लिक करके कट करो। Go to show more options and then you can cut. Do not open from there. Yes. Yes ma'am. अभी आप सी ड्राइव में जाओ। ओपन इट। यहाँ पे आके इसको पेस्ट करो, राइट क्लिक करके पेस्ट। आ गया फाइल? देखो नीचे Yes. फाइल है, उसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करो। इट विल आस्क यू एक्सट्रैक्ट ऑल, डू इट। मैम तो वो हम एग्जाम 9 के बाद भी दे सकते हैं क्या? आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैंने पूछा कि आपका जो भी कंफर्टेबल टाइम होगा। सी, मैं क्यों बोल रही थी 7 के पहले अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं ना, तो एटलीस्ट आई एम एबल टू अपडेट यू ना कि 7 के पहले क्यों देना है। मैम अगर मैं 7 को ही दे दूं, क्योंकि 7 को मतलब पूजा मॉर्निंग में थोड़ी देर ही है और उसके बाद आफ्टरनून के बाद है। तो मैं वही बोल रही हूँ, आप दे सकते हो, बट आप बोल रहे हो कि घर से प्लान करोगे, तो घर पे अगर वो स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता है गोविंद, दैट इज नहीं, व्हाट। हम घर जो परचेस किया है वो उधर है, जहाँ पे मेरा होम टाउन है औरंगाबाद, हम्म। और मैं भी रहता हूँ इधर पुणे में। अच्छा, तो अभी एग्जाम आप कहाँ से दोगे? पुणे से दोगे या एग्जाम औरंगाबाद से? में ही हूँ मैं मैम, 6 7 8 9 चारों दिन। हम्म। तो उसके बाद कहाँ से दोगे, पुणे या औरंगाबाद? वही पूछ रही हूँ। बाद फिर आप चाहो तो मतलब पुणे से दे सकता हूँ फिर आने के बाद। हाँ तो फिर बेटर है कि आप आने के बाद सेंटर पे आके दे दो। सेंटर बेस्ट रहेगा क्या? हाँ सेंटर बेस रहेगा, आपको ना कुछ सेटअप नहीं करना है ना, ना ही आपका लैपटॉप का है। अगर वहां से सडन कुछ इश्यू होता है तो वो वेंडर सब कुछ हैंडल करेगा। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट आपको आके एग्जाम देना है। ओके। ठीक है, तो आई वुल सजेस्ट कि पहले चेक करो कल का रिकॉर्डिंग, तो आपका आइडिया क्लियर होगा कि वेंडर ने क्या क्या डिस्कस किया, देन आप डिसाइड करो। ठीक है। ठीक है, अभी के लिए इसको ओपन करो फोल्डर को। अब जाके बिन में जाओ, बिन। एंड यहाँ पे जेमीटर का बैच फाइल आपको मिलेगा, विंडोज बैच फाइल। कम डाउन, ओनली जेमीटर लिखा है, देखो ऊपर जाओ। नो 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 नो, कम 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 अप, हाँ बस। देखो वहां पे लिखा है ना जेमीटर, और ये वाला। कैसे पता चलेगा? नो, उसके नीचे कैसे पता चलेगा विंडोज बैच फाइल है? आप इसके आगे पढ़ो, टाइप में देखो वहां पे लिखा है यस, विंडोज लिखा है बैच फाइल। विंडोज हाँ, बेस्ट। डबल क्लिक ऑन दैट। हो गया? यस। ठीक है। ओके, तो एवरीबडी गो फॉर द यस्टरडे रिकॉर्डिंग। निर्मला, आपने, आपका मेल मुझे मिला कि आपको फर्स्ट डे का रिकॉर्डिंग नहीं मिला, बट एक्चुअली आई हैव शेयर्ड इट। एक बार फिर से चेक करो ईमेल, नहीं तो मैं एक बार फिर से मेरे साइड से चेक करती हूँ, ठीक है? चलेगा, ओके। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू मैम।